Hello everyone, welcome to this video that is brought to you by CAT by LPT. Guys, with just 4 months remaining for CAT examination, and I'm sure you would have lots of questions in your mind in terms of your preparation for the CAT 2025. And when it comes down to VARC section, I'm sure you would be having a lot of queries in terms of how to deal with the VARC section and what is the strategy that you should be following in the next 4 months so that you are able to scale up your score in verbal. Now guys, when it comes down to VARC section here, the most important element of your VARC section is actually dealing with reading comprehension. So here I am and I'm going to give you a roadmap in the next 4 months as to how to tackle reading comprehension and what are the steps that you have to follow as far as your preparation for VARC is concerned. Please understand one thing, students, that when you talk about reading comprehension is all about two skills. First, it is all about the comprehension of the passage. So if you have already started taking classes, I'm sure you would be doing your basics and fundamentals and practice exercises. Just understand there is a way to solve an RC question. And when it comes down to the next 4 months game plan in terms of how you should be practicing, what you should be doing, there has to be a set of clarity in terms of how you're supposed to deal with RC and what is going to help you to scale up your score and what is actually a thing that you should be avoiding in the first place. Now, I am going to give you a step-by-step solution. See, I have not complicated the matters because what I believe is that you really don't have to follow the fancy process of mastering reading comprehension. Just keep it simple, but just make sure that it is very consistent, because see, I obviously believe that when it comes down to your efforts for CAT 2025, it's all about consistent efforts in the next 4 months. So stay with me till the end and make sure that you're understanding every point here. You can re-watch the video, you can pause the video, think about it, process that information, and I'm sure you would have a lot of clarity in terms of what you're supposed to do when it comes down to reading comprehension. So what I'm going to do is I'm going to give you some step process here, which is mastering reading comprehension for CAT 2025. So let's get started and try to understand what are the things we have to know. Right, so the first step when you talk about the VARC preparation, or rather reading comprehension preparation, is that you have to understand the landscape of the paper. So understanding the CAT RC landscape, right? So RCs make up 70% of the VARC section. That is, you will face 4 RC passages with 4 questions each. That makes up to 16 questions. Now, this is on the basis of last year's paper, guys. So, last year there were 4 passages of RC with 4 questions each. That makes up to 16 questions. Passages are mostly from non-fiction. So, the kind of passages that you see there is something which is not in the category of fictions. You don't really see the fiction passages. All of these passages are from the domain of non-fiction passages, and the source of this is mostly the Guardian, the Aeon Essays, the New York Times, Stanford Encyclopedia of Philosophy. There are other resources also, but this is just to let you know कि आपको क्या चीजें पढ़नी चाहिए so that you have a caliber in terms of handling the reading comprehension. So make sure that you are referring to these sources because these are the most probable sources जहां से CAT के RCs को लिया जाता है. Let's look further. Now, goals for mastery. So, what you should be aiming at in the next 4 months, what you should be doing in the next 4 months, what is the targets that you should be achieving in the next 4 months. So, it's about comprehending complex ideas in diverse domains. So, guys, please understand when it comes down to reading comprehension, you will have passages from any topic under the sun. तो वो सोशोलॉजी के ऊपर सकता है, वो साइकोलॉजी के ऊपर हो सकता है, वो फिलॉसफी के ऊपर हो सकता है, वो आर्किटेक्चर के ऊपर हो सकता है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकता है. This can be like any topic under the sun. So what you have to make sure is that you have to learn the trick of comprehending complex ideas in diverse domains. So make sure that when you are reading daily, understand one thing you should be doing daily for your रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मास्टरी इज दैट यू हैव टू रीड एवरी सिंगल डे. उसके बारे में हम डिटेल में अभी थोड़ा देर से बात करेंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपको एक चीज तो रिगरसली फॉलो करना है एंड दैट इज अबाउट reading every single day. If you are not doing that, you are really not preparing for CAT. So make sure for your VARC preparation, you have a fixed schedule
of reading every single day, because you have to comprehend complex ideas that is coming from diverse domains. So make sure you are reading across the domain. आप किसी स्पेसिफिक पे कंफर्टेबल होके मत रह जाना. जस्ट मेक श्योर कि आप डाइवर्स टॉपिक्स को डील कर रहे हो, सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैरायटी ऑफ टॉपिक्स. देन रीड एफिशिएंटली, neither too slow nor mindlessly fast. See, of course, reading slow, because if you are reading slow, the problem is that you take a lot of time in solving the RCs. Reading slow is of course a problem, but what I feel is that sometimes the students are too fast, okay? And this is again something that I figured out कि बहुत सारे लोगों के साथ में ये इशू होता है कि वो इतनी जल्दी पढ़ रहे होते हैं कि उनसे कॉम्प्रीहेंड ही नहीं हो रहा था कि पैसेज में क्या दिया गया है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, व्हाट आर द सब्सिडियरी पॉइंट्स एंड सो ऑन. So what I would say is that कि reading slow तो of course आपको make sure कि आप उसको improve कर रहे हैं over the time. But अगर आप बहुत fast read कर रहे हैं तो भी वो problem है, क्योंकि अगर आपको उससे key ideas समझ में नहीं आ रहे हैं तो chances are that despite reading the passage you will not be able to answer the question. So maintain a balance in terms of your reading speed. हमें इस speed से read करना है कि हम passage को सही time में complete कर पाए और हम ideas को भी comprehend कर पाए. एनालाइज टोन, स्ट्रक्चर एंड इंटेंट. जब आप कोई भी पैसेज पढ़ते हो, किसी भी सोर्स से पढ़ते हो, जस्ट अंडरस्टैंड कि ऑथर अपनी ऑडियंस को या ऑथर अपने रीडर्स को क्या इंटरप्रिटेशंस देने की कोशिश कर रहा है या क्या मैसेज दे रहा है. तो यू हैव टू फोकस द टोन. ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि द टोन इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव और इट इज न्यूट्रल. आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि पैसेज का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, क्या चीजें उसमें बताई गई हैं, सेकंड पैराग्राफ में क्या है, थर्ड पैराग्राफ में क्या है, फोर्थ पैराग्राफ में क्या है. और आपको ऑथर का इंटेंट पता होना चाहिए कि ऑथर अगर ये आर्टिकल लिख रहा है तो उसने व्हाट इज द इंटेंट ऑफ द ऑथर, व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट हैज मेड हिम अ चॉइस कि ही हैज डिसाइडेड टू राइट अ पर्टिकुलर piece of writing. So you have get to the intent of the author. Answer accurately under time pressure. So also understand guys कि आपको RC सॉल्व करने होते हैं बट आपको सही टाइम में सॉल्व करने होते हैं. अगर मैं एक नॉर्मल डे की बात करूं तो अगर आपको कितनी देर में एक RC सॉल्व करना है, अगर मैं कैट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इट इज अराउंड 8 to 10 मिनट्स. 10 मिनट्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है बिकॉज देयर आर 4 पैसेजेस. अगर आप चारों को अटेंड करने की बात कर रहे हैं तो आपको अपना टाइम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा. बट येस, समवेयर बिटवीन 8 मिनट्स टू मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 10 मिनट्स. इनिशियली ये टाइम लिमिट नहीं आएगी, हो सकता है आपको 15 मिनट भी लग रहे हो, बट ओवर द टाइम, बाय द टाइम यू अपीयर कैट, you have to consolidate your time taken per RC to approximately 8 to 10 minutes. Then I am going to give you a plan in terms of what you should be doing in the next 4 months and how you should be doing it. ठीक है, फर्स्ट इज फाउंडेशन बिल्डिंग. आपको पहले RCs का फाउंडेशन बनाना है. एंड व्हेन यू से फाउंडेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग. So it's about daily reading for approximately 60 minutes. ये bare minimum है, ये आपको minimum करना ही है. You can extend the time limit depending कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी या कितनी खराब है. If you are really good at English, 60 minutes is absolutely fine. But अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको efforts थोड़े से ज़्यादा लगाने हैं. Make sure you read daily for 60 minutes and the sources could be The Hindu, Aeon Essays, Project Syndicate, Life Mint, Scientific American, 3 Quarks Daily. These are the sites here. You can follow these sites. You can go for The Hindu articles. You can go for the New York Times. You can go for, The Guardian and so many other things. तो आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है, बट आपको ये इंश्योर करना है कि 60 मिनट्स की जो रीडिंग है वो आपको डेफिनेटली करनी है. ठीक है, read 2 articles per day across philosophy, science, politics, sociology and other domains. And make sure कि जब आप passages को read कर रहे हो तो आप डिफरेंट सोर्सेस प्लस डिफरेंट टॉपिक्स को डील कर रहे हो, बिकॉज आपको नहीं पता कि इस साल जब कैट में RCs आएंगे तो वो किस डोमेन से आएंगे. तो इट कुड बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इट कुड बी ऑन जियो पॉलिटिक्स, इट कुड बी ऑन पॉलिटिक्स और एनी टॉपिक अंडर द सन. तो मेक योर रीडिंग एज डाइवर्स एज पॉसिबल. आप जितना वैरायटी ऑफ डोमेन्स को डील करेंगे उतना आप कंफर्टेबल रहेंगे in case there is a surprise. Fine. Then focus areas. Basically when you talk about RCs, उसमें main point होता है कि आपको main idea figure out करना होता है, आपको tone figure out करना होता है और आपको author का argument figure out करना होता है.
आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि ये 3 चीजें क्या होती हैं, अगर नहीं तो यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियोस दैट वी हैव अपलोडेड इन द लिस्ट फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. बट येस, आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया, टोन एंड ऑथर्स आर्ग्यूमेंट is absolutely important to answer inference based questions, क्योंकि inference based questions के लिए जब तक आपको मेन आइडिया नहीं पता होगा, आपसे inference वाले questions की जो accuracy है वो आपसे नहीं बन पाएगी. Then keep an RC journal, summarize each article in 3 minutes. अगर आप 2 articles रोज पढ़ रहे हो तो आपको at the end of that article you have to summarize that article in approximately 3 to 4 lines, which simply means that you have to cover what exactly is the essence of the passage. तो उसमें अगर कोई confusion है या उसमें there is an element that you have not understood, at the end of the passage you should be understanding कि अगर passage में कोई main point दिया गया है जो author अपने readers को convince कर रहा है, तो आपको वो जो conclusion है वो आपको figure out करना है. Practice 2-3 RC passage moderate level daily from अरुण शर्मा, निशित के सिन्हा. ये 2 बुक्स में जनरली बच्चों को रेकमेंड करती हूँ. एक अरुण शर्मा की वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, एक निशित के सिन्हा की वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है. तो यू कैन प्रैक्टिस 2 to 3 RCs. 3 is the maximum you should be doing in a single day. बट अगर आप 2 पे कंसिस्टेंट हो और आप उसको रोज कर रहे हो, कंसिस्टेंसी इज द की गाइस. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बहुत सारे आरसीज एक दिन में सॉल्व करने हैं. आप सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 आरसीज को सॉल्व करिए, बट जिस तरीके से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं दैट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि वो आपका लर्निंग प्रोसेस है. तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से एरर्स कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या डिफिकल्टीज आ रही है, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल हैव टू एड्रेस देम इन द नेक्स्ट फेज. राइट, सो कीप अ आरसी जर्नल, समराइज ईच आर्टिकल, और ये आपको करते रहना है कंसिस्टेंटली, एटलीस्ट फॉर अ मंथ आपको करना है. एंड अगर आपको आप में उसमें इंप्रूवमेंट दिखता है देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर सम अदर पॉइंटर्स. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ कोर प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स. आपको किन चीजों पे काम करना है? आपको स्किमिंग करनी है, स्कैनिंग करनी है, फोकस ऑन स्ट्रक्चर नॉट मेमोरी. पैसेज को पढ़ते टाइम जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपको मेमोराइज नहीं करना होता है डिटेल्स को, बिकॉज यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप पैसेज पे दोबारा जा सकते हो. आपको की आइडियाज फिगर आउट करने होते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ को पढ़ा है तो आपको बस एक लाइन में समराइज करना आना चाहिए कि what is the point in the first paragraph, in the second paragraph, in the third paragraph, in the fourth paragraph. So you should be having all these key ideas for you. Right? तो ये skimming, scanning you have to do and focus on structure not on memory. लाइन रेफरेंस हैंडलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए. सो आई टेल स्टूडेंट्स कि जब भी आप इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर पैसेज के कौन से पैराग्राफ की कौन सी लाइन से आ रहा है. बिकॉज जब हम इन्फरेंस की बात करते हैं, इन्फरेंस इज अ जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन. ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन जब आप कुछ कंक्लूड कर रहे होते हो उसको हम इन्फरेंस बोलते हैं. तो अगर आपने कोई भी ऑप्शन इन्फर किया है पैसेज के थ्रू तो आपको पता होना चाहिए कि वो पैसेज के कौन से पैराग्राफ के कौन से लाइन से आया है. बिकॉज दीज आर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, तो आपको ये चीज होनी चाहिए क्लियरली, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू हैव एक्यूरेट आंसर्स. ओके, इन्फरेंस वर्सेस फैक्ट, नो द डिफरेंस. As I mentioned कि inference is a journey from known to unknown. तो on the basis of some information जब आप कुछ conclude कर रहे होते हो, logically conclude कर रहे होते हो, उसको हम inference बोलते हैं. Facts are simply stated, these are facts, they could be true or it could be false. और inference में आप जब deal कर रहे होते हो आप basically conclusions के बारे में बात कर रहे होते हो. देन टोन आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको टोन समझ में आनी चाहिए. पर्सुएसिव है, क्रिटिकल है, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ टोन्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द ऑप्शन दैट इज प्रोवाइडेड टू यू. बट ब्रॉडली स्पीकिंग टोन का जो फैक्टर है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स यू विथ एलिमिनेटिंग योर चॉइसेस. तो अगर आपको पता चल गया है कि ओवरऑल टोन इज नेगेटिव तो कोई भी पॉजिटिव ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है या एलिमिनेट हो जाता है. आई एम श्योर अगर आप दूसरे वीडियोस को भी फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा बाय नाउ कि हम किस तरीके से आरसीज को सॉल्व करते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच दोज वीडियोस फॉर बेटर क्लैरिटी. देन यू हैव प्रैक्टिस प्लान. ये आपको आई थिंक इसी मंथ से करना स्टार्ट कर देना चाहिए. मतलब नो मैटर कि आप अभी कितने एफिशिएंट हो आरसी में, यू शुड बी डूइंग दिस फॉर एवरी सिंगल डे.
2-3 आरसीज आपको रोज करने हैं टाइमर के साथ, बिकॉज स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको 15 मिनट तक भी लग रहे हो, पर आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आरसीज को 8 to 10 मिनट्स में कवर अप कर पाओ. इट विल टेक सम टाइम, बट आई एम श्योर कि बाय द कंसिस्टेंट प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू अचीव इट. तो अपने आप को टाइम करो एंड देन सॉल्व अंडर दैट टाइम प्रेशर, बिकॉज वेन यू गो टू कैट वहां पे भी आपके पास टाइम प्रेशर रहेगा. VARC के लिए यू विल हैव जस्ट 40 मिनट्स, और उस टाइम प्रेशर में हैंडल करना, चीजों को कॉम्प्रीहेंड करना इज नॉट एन ईजी टास्क. सो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ टू बियर दैट प्रेशर. तो 2 से 3 आरसीज, ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद रीअटेम्प्ट इनकरेक्ट आंसर्स विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशन, राइट डाउन व्हाई द राइट ऑप्शन इज राइट एंड अदर्स आर रॉन्ग. व्हेन यू सॉल्व एन आरसी, सिर्फ सॉल्व करने से आपका जो कॉम्पिटेंसी है वो इतनी इंप्रूव नहीं होती है. जस्ट मेक इट श्योर कि आप अपने रॉन्ग आंसर्स को क्लोजली एग्जामिन करो, फिगर आउट कि आपने सही ऑप्शन को क्यों एलिमिनेट किया था और आपने जो ऑप्शन चूज किया था वो किस लॉजिक से चूज किया था. दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं. इनिशियली यू विल मेक मिस्टेक्स, बट आपका जो रियलाइजेशन है मिस्टेक्स का वो आपको हेल्प करेगा कि आपको आगे के लिए किस तरीके से उससे डील करना है. सो वंस यू आइडेंटिफाई कि आपका कॉम्प्रीहेंशन इज नॉट अप टू द लेवल, यू कैन वर्क ऑन योर कॉम्प्रीहेंशन. अगर आप ये फिगर आउट करते हो कि मैं ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाता हूं, तो मुझे पता है कि जब मैं आरसी सॉल्व करूंगी आई विल बी पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द options and so on. So figure out what exactly is the problem and then try towards a solution to that problem. Keep this in mind. I think it is going to help you. ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया है कि आपको ये एनालाइज करना है कि आपने सही आंसर को क्यों एलिमिनेट किया था और आपने गलत आंसर को क्यों चूज किया था. ये जो गैप है, अगर आप इसको फुलफिल कर पाएंगे नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में, तो वो आपकी एक्यूरेसी के लिए कैन डू वंडर्स. नाउ टेस्ट मोड, नाउ सी अगेन स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है, बट मुझे लगता है कि इवन इफ यू आर स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको टेस्ट वगैरह देना चाहिए. इफ नॉट द फुल लेंथ टेस्ट, बिकॉज शायद अगर आपने स्टार्ट किया है पिछले 1-2 महीने में तो यू वुड नॉट बी कॉन्फिडेंट इनफ टू गोइंग फॉर द फुल लेंथ, बट आप टॉपिक टेस्ट दे सकते हो. आप आरसी के जो टॉपिक टेस्ट वगैरह होते हैं, एक पर पैसेज और 2 पैसेजेस वाला, वो आप उसको फोकस कर सकते हैं. So you can start doing these topic tests and you can then move on to the sectional test and then you can go to full length test. पर आपको लास्ट तक वेट नहीं करना है कि आप नवंबर में स्टार्ट करो, that will be too late. तो अभी से अपने प्रैक्टिस के साथ टॉपिक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज करिए, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू हैव दैट डिसेंट एक्यूरेसी इन द मंथ. एकदम से तो नहीं बिल्डअप होगा, बट आई एम श्योर कि अगर आप 1 या 1.5 महीना उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी है ऑफ कोर्स वो इंप्रूव होगी. तो फोकस एरियाज इज फुल लेंथ VARC सेक्शंस जो आप करेंगे अराउंड फ्रॉम द पास्ट कैट एंड मॉक्स. मतलब आई बिलीव अगस्त में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अगस्त का महीने में तो आप सिर्फ टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट दीजिए. September onwards you can go for the sectional test and for the full length test. That should eventually help you. टाइम मैनेजमेंट आपको करना है 40 मिनट्स फॉर VARC. तो अगर आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं तो आपको 40 मिनट्स देना है, जिसमें से यू विल हैव टू डिवाइड योर टाइम विद टर्म्स ऑफ VA क्वेश्चंस एंड RC क्वेश्चंस. VA को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम RC की बात कर रहे हैं. तो जस्ट मेक इट श्योर कि अगर आप RCs को सॉल्व कर रहे हैं तो आप उस टाइम्ड प्रेशर को विच इज 8 to 10 मिनट्स को मैनेज करके चले और उसी ड्यूरेशन में यू आर सॉल्विंग द RCs. Weak areas focus. What exactly are your weak areas? Is it inference? Is it purpose? It is paragraph structure? Materials के लिए आप follow कर सकते हैं CAT previous year के papers from 2017 to 2023. Sectional test from your source of your choice. RC99, GMAT Club, Passive for Extra Challenge. You could have any sort of sources guide, but just understand कि सिर्फ कंटेंट को इकट्ठा कर लेने से कुछ नहीं होता. इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको सही तरीके से यूज करें. देयर इज नो पॉइंट इन रेफरिंग टू मेनी ऑफ अ कंटेंट हियर फ्रॉम अ डिफरेंट वेबसाइट. जस्ट फॉलो, पिक अप वन एंड फॉलो वन कंसिस्टेंटली. उसको सही से करना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी सोर्स से करें. तो अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो स्टिक टू दैट वेबसाइट एंड मेक श्योर कि जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है आरसीज को डील करने का, आप उसको डील करते रहे एंड यू आर एबल टू मूव फर्दर. देन टूल्स एंड टेक्निक्स में जब आप आरसीज को सॉल्व कर रहे होते हैं तो दिस लाइक एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी को हम फिगर आउट कर रहे होते हैं. आई एम श्योर कि आपको क्लासेस में बताया भी गया होगा कि जब आप आरसीज को आंसर करते हैं तो आप एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं.
एलिमिनेट 3 रॉन्ग ऑप्शंस, डोंट जस्ट पिक द राइट वन। हम सही आंसर के लिए फिगर आउट नहीं कर रहे होते हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द फ्लॉ इन द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस दैट ऑटोमेटिकली लीड्स अस टू द राइट ऑप्शन, राइट। पैराग्राफ मैपिंग करना इंपॉर्टेंट है आपको। जब आप पैसेज को रीड कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस पैराग्राफ का क्या रोल है, इस पैराग्राफ का क्या रोल है। तो डोंट डिपेंड ऑन योर मेमोरी, फोकस ऑन द स्ट्रक्चर। Track the flow of thought, introduction, argument, example, conclusion. जनरली ये पैटर्न होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पैसेज में ये पैटर्न फॉलो हो, बट जनरली ऐसा होता है कि इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में आता है, फिर कुछ स्टडी होती है, एग्जाम्पल होता है, लास्ट में कंक्लूजन होता है। आरसी एनोटेशन, अंडरलाइन कीवर्ड्स, कॉन्ट्रास्ट, कंक्लूजन, एग्जाम्पल्स, मार्क टोन, पॉजिटिव, क्रिटिकल, स्केप्टिकल। तो ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपको ऑथर का इंटेंट, ऑथर की टोन और ऑथर का जो पर्पस है वो क्लियरली समझ में आना चाहिए। अगर आप रोज एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो मेन पॉइंट उसका फिगर आउट करिए एंड मेक श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई द ऑथर हैज रिटन दैट पैसेज, बिकॉज दैट विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकसीज ऑफ द पैसेजेस। Then revision and feedback loop. So weekly review, go through errors, especially trap choices, maintain and RC error log. तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब आप RCs को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, यू शुड बी सॉल्विंग 2 to 3 RCs एवरी सिंगल डे फ्रॉम नाउ ऑन। ये आपको करना है गाइज, बिकॉज इसके बिना, प्रैक्टिस के बिना यू कैन नॉट इम्प्रूव योर कॉम्प्रीहेंशन लेवल, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर एक्यूरेसी। तो अभी भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो रीडिंग करिए। रीडिंग फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर VARC। साइमल्टेनियसली पिकअप और ऑल्टरनेट डेज कि आप RCs को भी कर रहे हैं और आप VA को भी कर रहे हैं। जब आप RCs कर रहे हैं, मेंटेन एंड RC एरर्स लॉग, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा ये फाइंड आउट करने में कि जब आप RCs को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो देयर इज नो इश्यू, बट अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आपको ये फिगर आउट करना है कि व्हाट आर द काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट यू आर कमिटिंग। इज इट द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पैसेज? इज इट पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन? इज इट द ऑप्शंस दैट आर टू क्लोज और कंफ्यूजिंग? what exactly is making you go wrong with the answer? That has to be figured out. डोंट डू दिस। कुछ वेरिएशंस है यहाँ पे कि आपको जो नहीं करना है। डोंट रिलाई ओनली ऑन सॉल्विंग, रीड वाइडली। आपके जो VARC का प्रिपरेशन है वो 2 तरीके से बाइफर्केटेड होता है। 1 घंटे की तो आपको रीडिंग करनी है कम से कम, मतलब दैट इज विदाउट एनी रूल्स। आपको इंश्योर करना है कि आप रोज 1 घंटा तो रीडिंग कर रहे हैं और बाकी के 1-2 घंटे आपको प्रैक्टिस पे डालने हैं, वेयर यू प्रैक्टिस दीज 2-3 RCs एंड सम VA क्वेश्चंस। और डोंट रीड जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, रीड इट विथ एन इंटेंट कि at the end of your reading exercise you should be becoming more prominent and more better, you should be more confident in your approach towards RC. So don't rely only on solving, read widely. ये मैंने starting में भी emphasize किया था and that was important. Don't reread passages blindly, strategic reading is the key. Guys, आप जब start करोगे पढ़ना तो there will be chances कि आपको दोबारा passage को पढ़ना पड़े या थर्ड टाइम भी आपको पढ़ना पड़े, but there is no point going back again and again to the passage. Mostly you should be trying कि one reading should be enough, especially for the broader picture of the passage और जो specific details के questions है उसके लिए of course you can go back, but you have to do all this in approximately 8 to 10 minutes at best. ठीक है। Now don't assume one right tone, context is everything. Generally passages की tone होती है, टोन को हम आइडेंटिफाई इस तरीके से भी कर रहे होते हैं, देयर इज ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज, देयर इज स्पेसिफिक टोन ऑफ द पैसेज। तो ओवरऑल टोन अलग हो सकती है, स्पेसिफिक टोन भी अलग हो सकती है। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, मेक श्योर कि आप कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करके उसकी टोन फिगर आउट कर रहे हैं। अगर ऑथर ने कोई पर्टिकुलर पॉइंट बोला है जो रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ से या पैसेज से डिफरेंट है, यू शुड बी नोटिंग इट डाउन। तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस and of course you are good to go. So basically in the next 4 months this is the game plan that you have to follow. At the end of it all, it is all about keeping it simple and keeping it consistent. आप रीडिंग करिए कम से कम 1 घंटे की। मेक श्योर यू आर सॉल्विंग 2 to 3 RCs एवरी सिंगल डे। VA को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, VA के लिए आपको सेपरेट टाइम देना है, बट यू शुड बी सॉल्विंग 2-3 RCs एवरी सिंगल डे। एंड द वे आई हैव टोल्ड यू टू मेंटेन
how you should be looking at the details. आपको एक error log रखना है, आपको एक summary रखनी है. Follow that for the next 4 months and I'm sure you would have a really good command over reading comprehension and you will be able to ace your score. So this is all from my side for today's video. For more such content, keep watching this place and subscribe to our channel. And if you find कि ये जो video था आपके लिए helpful था and would have added a depth to your understanding with respect to reading comprehension, please give it a like and share it with people who actually need this video. I'm sure you would be having a lot of questions as of now, but it is all about starting at the right time. 4 months down the line, I'm sure कि ये जो 4 months का duration है आपको काफ़ी engage रखेगा, and that is the pointer you should be looking at, watching over your health as well. Make sure you are eating right, you are sleeping right, and you are working hard enough. So that's all from my side. Thank you, students. See you in the next video. Thank you so much. Goodbye and good night.